یقین جانیے جو اللہ رب العالمین کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ نہ فرعون ہمیں جھکا سکا، نہ قارون ہمیں خرید سکا۔ ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ ایمان کے لیے ہمیں بہت ساری قربانیاں دینی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے آشائش و آرام کے لیے نہ جانے ہم کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، نہ جانے ہم کتنے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ہمیں بے عزت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کو روپیہ پیسہ چاہیے، ہم کو مال و دولت چاہیے تاکہ عیش و عشرت کی زندگی یہاں گزارے۔ اس کے واسطے ہم بے عزتی برداشت کر لے رہے ہیں۔ ارے اللہ رب العالمین جنت دے گا، کیا جنت اتنے آسانی سے مل جائے گی؟ تم اللہ کے دوست ہو، وہ اللہ کے دشمن ہے۔ دوست اور دشمن برابر نہیں ہو سکتے۔ دشمن کا کام ہی ہے دشمنی کرنا، ظالموں کا کام ہی ہے ظلم کرنا۔ ہم نے اور آپ نے استقامت کے تعلق سے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی تھیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہو، اس پر جمے رہو، اس پر ڈٹے رہو۔ کسی بھی قسم کی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، یہاں تک کہ اگر تمہیں ظالم لوگ ایمان سے پھرنے کے لیے، اسلام کو چھوڑنے کے لیے ظلم کا انتہا کر دیں، تمہارے جسم کو کاٹ کر کے بوٹی بوٹیاں کر دیں، یا تمہیں آگ میں ہی کیوں نہ ڈال دیا جائے، پھر بھی اپنے ایمان سے دستبردار نہ ہونا اور اسلام کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑنا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس جمعہ کے اندر انشاءاللہ العزیز میں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں انہی بعض مرد و خواتین کا تذکرہ اور ان کے واقعات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا جن کے اوپر ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دین و ایمان کو نہیں چھوڑا اور ایمان پہ قائم و دائم رہے، ثابت قدم رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ، جس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، سورہ نمبر 41 کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ بے شک کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس بات پر وہ قائم و دائم رہے، اس بات پر وہ جمے اور ڈٹے رہے، اس بات پر وہ ثابت قدم رہے، تو موت کے وقت اللہ رب العالمین کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ وہ فرشتے ان لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یقین جانو ہم تمہارے دوست اس دنیا کے اندر بھی تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، یہ بھی سن لو کہ جس جنت کا اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ جنت بھی تمہیں کل قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر تم جس چیز کی خواہش کرتے تھے، جس چیز کی چاہتے ہوتی تھی، ہر وہ چیز تمہیں وہاں ملنے والی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آئیے ہم ان چند واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چند نوجوانوں کا تذکرہ کرتا ہے جن چند نوجوانوں نے بادشاہ، جو ظالم بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے، وہ بت پرستی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا تھا، وہ شرک کی طرف لوگوں کو مائل کرتا تھا، اور جو لوگ بھی شرک نہیں کرتے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے، ان کے اوپر طرح طرح سے مظالم ڈھاتا تھا۔
चंदे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत नसीब फरमाई, उन चंदे लोगों ने ईमान लाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर जब ईमान लाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी उनके ईमान को मजबूत कर दिया और इस कदर उन्हें साबित कदमी नसीब फरमाई कि जब बादशाह को उनके ईमान लाने का वाकया मालूम हुआ, बादशाह ने उन्हें अपने दरबार में तलब किया और उनसे पुरसिश की कि आखिर हम लोग जिन देवी देवताओं की इबादत करते हैं, जिनकी हम परस्तिश करते हैं, उनकी तुम लोग इबादत क्यों नहीं करते हो? तो उन लोगों ने किस कदर जुर्रतमंदी के साथ, बेखौफी के साथ, निडरता के साथ जवाब दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर उसका नक्शा खींचा है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो चंद नौजवान थे जिन्होंने अपने रब के ऊपर ईमान लाया था, तो हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। जब बादशाह के सामने वो खड़े हो गए, इद कामू फकालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, जब बादशाह के सामने खड़े हो गए, बादशाह ने पुरसिश की तो देखिए बेखौफी के साथ कहा, हम तुम्हें रब मानने वाले नहीं, हम तुम्हें खुदा मानने वाले नहीं, हम तुम्हारे सामने या इन पत्थर और ये मिट्टी के देवी देवताओं के सामने अपने सर को झुकाने वाले नहीं, बल्कि हमारा रब तो वो रब है जो आसमानों का रब है और जो जमीनों का रब है। और ये भी सुन लो कि हम उस अल्लाह को छोड़ करके किसी और इलाह और माबूद को पुकारने वाले नहीं हैं। मुश्किलात आए तो हम उसी अल्लाह को पुकारेंगे। मसाइब आलम के पहाड़ तोड़ दो, हम तुमसे फरियाद नहीं करेंगे, हम तुमसे मदद की भीख नहीं मांगेंगे। हमने रब पर ईमान लाया है, उसी रब को हम मदद के लिए पुकारेंगे, उसी रब से हम इल्तिजा करेंगे, उसी रब से हम फरियादें करेंगे, उसी रब को हम पुकारेंगे। ये नौजवान इस हालात में भी दावत व तबलीग कर रहे हैं और दावत व तबलीग बेखौफी के साथ करते हुए कहते हैं, हाउलाए कौमुन अत्तखज़ु मिन दूनिही आलिहा, ये हमारे कौम के लोग हैं। देखिए इन लोगों को देखिए, इन्होंने अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह को अपना माबूद बना लिया है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुमने अल्लाह को छोड़कर जिनको माबूद बनाया है, तुम इसके बारे में कोई साफ और रोशन दलील क्यों नहीं पेश कर रहे हो? आखिर जिस रब ने हमें पैदा किया है, उस रब को छोड़कर तुम उसकी पूजा पाठ क्यों करते हो जिसको तुमने अपने हाथों से बनाया है? भला जो रब हमें खिलाता पिलाता है, उस रब को छोड़ करके तुम इनकी इबादत और पूजा पाठ क्यों करते हो जिसकी देख रेख खुद तुम कर रहे हो? दलील तो पेश करो। लेकिन दलील कहां वो पेश कर सकते हैं? उनके ऊपर मजालिम ढाए जाने लगे, जुल्म और सितम किया जाने लगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहनुमाई मिली कि फला गार के अंदर जाके छुप जा, हम तुम्हारी मदद करने वाले हैं। यकीन जानिए, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हो जाता है, अल्लाह भी उसका हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हिफाजत कर दी। सारे लोग उनको तलाश करते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन वो ना मिले। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुफार और मुशरिकीन हिजरत के वक्त ढूंढ रहे थे और वहां गार पे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मौजूद हैं। अगर कदम के नीचे देखते वो नजर आ जाते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत फरमाई। आज दौलत इस बात की है, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया है, हमने इस्लाम को अपनाया है, तो इस पर दिल जमाई के साथ, मजबूती के साथ कायम और दायम रहें, तभी जाके अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा। अगर हमने मसलहत का रास्ता अपनाया, मसलहत कह करके उन लोगों के त्योहारों में जाना शुरू कर दिया, उनके अंदर मदद करनी शुरू कर दी, उनके हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी, अल्लाह हमें जलील और रुस्वा कर देगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है, तुम्हारे जिस्मों को काट करके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, तुम्हें आग में डाल दिया जाए, फिर भी तुम कुफ्र को इख्तियार न करना, फिर भी तुम शिर्क को इख्तियार न करना। यह है ईमान, यह है ईमान के अंदर साबित कदमी। मेरे भाइयों, आपको वाकया भी याद होगा, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गया,
कहा ऐ फिरौन, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना माबूद समझो और उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और रियाजत करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मुआजिजा दिखलाया, लाठी फेंक दी, असा फेंक दिया, सांप बन गया, अपने हाथ को बगल में दाखिल किया, फिर निकाला, ये रोशन और चमकता हुआ हो गया। फिरौन ने कहना शुरू कर दिया, अरे तुम तो जादूगर हो गए हो, तुम तो जादू दिखा रहे हो, जादू के जोर से शायद हमें हमारे गांव से निकालना चाहते हो, हमारी हुकूमत पर कब्जा करना चाहते हो और हमारे दीन और धर्म से लोगों को भटकाना चाहते हो। चुनांचे फिरौन ने पूरे दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े जादूगर थे उन लोगों को बुलाया। जब जादूगर आए उन्होंने फिरौन से कहा, ऐ फिरौन, अगर हमने मूसा को शिकस्त दे दी तो हमें क्या बदला देंगे? कहा मुंह मांगा इनाम दूंगा और अपने खास दरबार में तुम्हें जगह अता करूंगा। वो लोग खुश हो गए कि इतना बड़ा मर्तबा मिलने वाला है। मूसा के पास आए, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जादू पहले तुम दिखाओगे कि हम दिखाएंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले तुम ही लोग दिखाओ। उन लोगों ने रस्सियां फेंकी, सांप बन करके आगे आने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, डरो नहीं, अपने असा को फेंक। असा के फेंकते ही उन तमाम जो मसनूई सांप थे, जादू के जरिए से बने थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुआजिजे ने उन सारी चीजों को निगल लिया। वो सब सबसे बड़े बड़े जादूगर थे, उससे बड़ा कोई भी जादू नहीं था। उन लोगों को यकीन हो गया कि मूसा जिस चीज का दावा कर रहा है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नबी है और ये मौजज़ा है अल्लाह की तरफ से, वाकई वो अपनी बात पर सही है, सच है। फौरन बैक ज़बान होकर के कहते हैं, हम सब ने मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। अल्लाह अकबर। फिरौन ने देखा हमारा दाव उल्टा पड़ रहा है, हमने तो इसलिए लाया था ताकि मूसा की बात लोग ना माने, इन लोगों ने ईमान लाया, अब तो सारे लोग इन लोगों के बातों पे आ जाएंगे, सारे लोग हमारे रास्ते को छोड़ करके मूसा के पीछे चले जाएंगे। फिरौन ने जादूगरों को डराया और कहा, तुम लोग मूसा ही के शागिर्द हो, तुम सब मिल करके हमें हुकूमत से दस्तबरदार करना चाहते हो। उसके बाद इन्होंने कहा, सुनो, लउक़त्तियन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ व लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। हम तुम लोगों के हाथ और पांव मुखालिफ सिमत से काट देंगे और तुम सबको सूली में चढ़ा देंगे। सारे वो जादूगर जो अब मोमिन बन चुके हैं, अपने आंखों से ईमान को देख लिया था, उन लोगों ने कहा, ला दैरा, कोई बात नहीं है, तू हमारा क्या बिगाड़ सकता है? इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून। अरे हम तो अपने रब की तरफ जा रहे हैं, देखो अभी चंद वक्त का ईमान है, अभी फौरन वो ईमान लाए हैं और ईमान की साबित कदमी देखिए। वो फिरौन जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उससे बड़ा जालिम और जाबिर कोई भी आज तक नहीं हुआ, वो फिरौन जिसने अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया था, अभी फौरन ईमान लाने वालों का ईमान इतना मजबूत हो गया, वो साबित कदम इस तरीके से हो गए। वो फिरौन को ललकारते हुए कहते हैं, फिरौन जब तक हम जिंदा हैं तब तक तू हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। ये जिंदगी की क्या हकीकत है? मौत तो एक दिन आनी ही है, आज आए तुम्हारे हाथ से या कल आए, मौत आनी ही आनी है। तुम हमारे ऊपर जुल्म करोगे, मौत आ जाएगी, इस जुल्म से नजात मिल जाएगी, तेरी तकलीफ से नजात मिल जाएगी। लेकिन सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो आखिरत की जिंदगी है, कभी फना होने वाली नहीं, कभी खत्म होने वाली नहीं। अगर आज हमने तुम्हारी बात मान ली, चंद दिन तक खुश रहेंगे, चंद दिन तक सुख के साथ रहेंगे, लेकिन मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अजाब है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब के मुकाबले में तुम्हारे इस अजाब को हेज समझते हैं। जो करने का है कर ले, ईमान से हम दस्तबरदार होने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ वाक़यात हैं। आप देखिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किस तरीके से जुल्म और सितम किया गया। इस ईमान के खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए सजदे में जाते तो जाकर के जानवरों का ओझरी ला करके उनके ऊपर पीठ पर रख दिया जाता था। आप जिस रास्ते से गुजरते कांटे बिछा दिए जाते, आप जिस रास्ते से जाते ऊपर से पूरे कचरे वगैरह फेंका जाता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्के से मदीने चले गए, वहां पे भी यहूदियों ने साजिश की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की। सहाबा-ए-किराम के ऊपर जुल्म और सितम हुआ। बुखारी हदीस नंबर 3612 में
खुबैब बिन अरब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मक्का के कुफार और मुशरिकीन के जुल्म और सितम से इस कदर तंग आ गए थे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देख रहे हैं किस कदर मजालिम हमारे ऊपर ढाए जा रहे हैं, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ क्यों नहीं करते, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारे वास्ते मदद तलब क्यों नहीं करते। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को दिलासा देते हैं, कहते हैं पिछले जो कौमें थी उनके मानने वालों के ऊपर इस कदर जुल्म और ज्यादती की गई कि उनके लिए गड्ढे खोदे जाते थे, इन लोगों को गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता था, फिर उनके सर के ऊपर आरा चला करके चीर करके दो टुकड़ा किया जाता था, ईमान लाने की वजह से, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब मानने की वजह से। लेकिन वो लोग अपने ईमान से दस्तबरदार नहीं होते थे कि लोहे के कंघे को जिस्म के अंदर पैवस्त कर दिया जाता था, जिस्म के अंदर घुसा दिया जाता था और कंघी को ऊपर से नीचे फिरा के लाते थे, जिसके वजह से गोश्त पूरा निकल जाता था, हड्डियां बाकी रह जाती थी। आपको बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया मालूम ही है। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गले पे रस्सी डालकर शरीर और बदमाश बच्चों के हाथों में दे दिया जाता था। वो शरीर बदमाश बच्चे इनको पहाड़ों में घसीटते हुए फिरते थे। कभी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को धूप में खड़ा कर दिया जाता था, कभी रेती पर उनको लिटा दिया जाता था, उसके छाती पर पत्थर रख दिया जाता था, उनको कहा जाता था अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार करो, हमारे माबूदाने बातिला का इकरार करो। वो कहा करते थे अहद अहद अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, तुमको जो करना है कर लो, हमारे दिल के अंदर जो ईमान ब्रच बस गई है वो अब निकलने वाला नहीं है। इसी तरीके से खुबैब और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया है। उन्हें हारिस बिन आमिर के घर के अंदर चंद दिनों तक भूखे प्यासे रखा गया। उसके बाद उन लोगों से कहते हैं देखो हम तुम्हारे जान को बख्श दे सकते हैं, अभी भी तुम्हारी जान बख्श दी जा सकती है, लेकिन बस एक शर्त है कि तुम इस्लाम को छोड़ दो। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैक ज़बान होकर के कहा जब ईमान और इस्लाम ही बाकी ना रहे इस जान को लेकर क्या करेंगे। अरे जालिमों, तुम हमें ईमान से दस्तबरदार होने के लिए कहते हो, ये इस्लाम और ईमान ही ना रहा तो फिर क्या करेंगे। जिस रब ने हमें पैदा किया है उस रब ने हमें यह पैगाम सुनाया है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, जो कुर्बानियां देते हैं, ये मसाइब व आलाम जो आ रहे हैं हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये अल्लाह के लिए है। हमारा जीना भी अल्लाह के लिए, हमारा मरना भी अल्लाह के लिए। क्या तू ये कह रहा है कि हम तुम्हारे माबूदों के वास्ते जिएंगे, तुम्हारे माबूदों के लिए हमारी मौत होगी? नहीं। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान मुकद्दस का नुज़ूल हुआ है, जो सारे इंसानों की हिदायत के वास्ते है, जो हमें जन्नत का मुजदा और खुशखबरी सुनाता है, उसने तो कहा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। खबरदार, तुम्हारी मौत इस्लाम की हालत में आनी चाहिए। हम इस्लाम की हालत में मरना चाहते हैं, अपने दिल के अंदर ईमान और इस्लाम को रचाए और बसाए हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम मुलाकात करना चाहते हैं। बहरहाल हुक्म दिया गया नेजा बरदारों को कि इनको सूली के नीचे खड़ा किया जाए और इनके जिस्म के हर हिस्से को नेजा से जख्म किया जाए। नेजा से जख्म किया गया। आखिर में एक जालिम आता है, खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पे वार करता है और दिल पे वार करने के बाद कहता है अब तो इस तकलीफ को देखकर तुम ये सोच रहे होगे कि काश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जगह आ जाते और तुम्हें इस चीज से नजात मिल जाती। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गया। कहा जालिमों, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। अरे क्या हम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कभी ये सोच सकते हैं? हमारी तो ये ख्वाहिश है, ये एक जान क्या, अगर 100 जान अल्लाह रब्बुल आलमीन दे दे और 100 जान इसी तरीके से निकलते रहे, हम इसको गवारा करेंगे, लेकिन कभी ये पसंद नहीं करेंगे कि महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
पांव में एक कांटा भी चुभे। ये है ईमान और ये है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाख मुसीबतें आ जाए, किसी भी हाल में दस्तबरदार अपने ईमान से नहीं होंगे। आपको पता है हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया, जब उन्हें शहीद कर दिया गया, शहीद करने के बाद जालिम लोग खामोश नहीं रहे, उनका दिल ठंडा नहीं हुआ। हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के लाश लाई गई, उनके सीने को चाक किया गया, कलेजे को निकाल लिया गया और नाक कान काट लिए गए। इस तरीके से लाशों के साथ भी बेहुरमती की गई। किस कदर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। आपको पता है सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा, औरतों के ऊपर भी किस कदर जुल्म और सितम किया गया और औरतें भी किस कदर इस्तिकलाल और साबित कदमी के साथ रही। ये हमारे माँ और बहनों के ईमान को ताजा करने के लिए और हमारे माँ और बहनों से हम गुजारिश करते हैं कि आप भी इन वाकयात से सबक लें, किसी भी हालत में अपने ईमान से दस्तबरदार ना हो। सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बेटे अम्मार और उनके शौहर यासिर रदियल्लाहु अन्हुम के साथ बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती की गई और उन्हें इस्लाम से फिर जाने के लिए तरह तरह से दबाव डाला गया। किसी भी हाल में वो लोग नहीं माने। आखिर में जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी। इस कदर जुल्म सितम किया गया, न सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने ईमान को छोड़ा, न अम्मार ने छोड़ा, न यासिर ने छोड़ा। यह है ईमान, यह है साबित कदमी, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन को मतलूब है, यही मकसूद है। ये मत समझिए कि जबान से हमने ईमान का इकरार कर लिया ये काफी है। नहीं मेरे भाइयों, फिरौन के जमाने का एक वाकया है, यह भी मुस्तदरक हकीम के हदीस है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा जब उनका हुआ था, मेराज का वाकया, उस रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आला दर्जे की खुशबू महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा